Here see astronomical telescope. It is also known as the refracting telescope because the two convex lenses are used. One is known as the objective piece, other is known as the eyepiece. Objective piece is large aperture, large focal length. It is taken large aperture, large focal length, so that a large amount of light can gather from all parts of the stars and the planets, and the bright image can be formed, so that the light can gather from all parts of the stars and planets, and it is taken smaller aperture, small focal length, so that the gathered light passes through the small area. As a result, bright image could be formed. By bright image bans. As a result, we are able to see the distinct images of the planets and the stars at a least distance of distinct vision. Here you see this object lies at infinity. When object lies at infinity, image is formed at its focus. So image is formed the focus of the objective piece. And this A dash B dash lies between the objective piece and its focal length, focal point. So A dash B dash acts as an object for eyepiece, and its final image is formed at the least distance of the distinct vision. Here, if the angle made by the image angle of vision is alpha, this alpha is same for the eyepiece, because for the large objects, when the object lies at a large infinity, at the large distance, then angle at the objective piece is same as the angle at the eyepiece. If the final image forms angle beta at the eyepiece, and thus we are able to see the real and inverted image A double dash, B double dash at the least distance of the distinct vision. इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गया. नाउ द मैग्नीफाइंग पावर. Note down, it can be defined as it is the ratio of angle formed by the image situated at the least distance of the distinct vision, angle formed by the final image situated at the least distance of the distinct vision, at the least distance of the distinct vision at the eye to the angle formed by the object situated at infinity, situated at the infinity, angle made at eye. तो क्या हो गया? It is the ratio of the angle formed by the final object situated at infinity, situated at the least distance of distinct vision at the eye, to the angle formed by the object situated at infinity at the eye, angle made at the eye.
यही हमारा ये रेशियो, इसको एंगल ऑफ विजन कहते हैं। इट मीन्स m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, इट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। क्या करो जी, tan beta upon tan alpha. What is tan beta? You have to see. Here it is a dash b dash upon b dash e, या e b dash, a dash b dash upon e b dash upon, here you see tan alpha. Tan alpha it is a dash b dash upon ob dash, a dash b dash upon ob dash, and this is equal to a dash b dash cancelled out, ob dash upon eb dash. What is the ob dash? Ob dash is f0. Ob dash is f0. So here you see, this is equal to, after this we find as m is equal to ob dash upon eb dash. Ob dash is f0 upon ue minus ue, क्लियर करना, FO अपॉन माइनस UE, m इज इक्वल टू, यह UE होगा और एक FO। इज इट क्लियर टू ऑल? For eyepiece we will write as, for eyepiece, where you see ये मैग्निफिकेशन हमारा आ गया, m is equal to minus f4 upon ev for eyepiece, for eyepiece. Here u is equal to minus ue, u minus ue, and v is equal to, here for eyepiece you see u is equal to minus uv, v is equal to minus d. So 1 upon v minus 1 upon u, it is 1 upon f. 1 upon minus d minus 1 upon minus ue, it is 1 upon fe. हम इसको fe कहेंगे, eyepiece की फोकल लेंथ 1 upon fe. FE focal length, m is equal to f4 upon minus ue, minus ue. Now you see, if d is multiplied, what happens? If d here 1 upon minus 1 upon d, अच्छा देख लेते हैं, plus 1 upon ue, it is equal to 1 upon fe. 1 upon ue की वैल्यू अच्छा निकालें, बेटी रहेगा 1 upon fe, it is equal to 1 upon fe plus 1 upon d. It means 1 upon ue है ना, हाँ 1 upon ue. तो fe हम इसमें ले 1 upon fe plus, क्लियर करना, it is 1 upon fe plus 1 upon d, it is 1 upon ue. And magnification here, f4 upon minus ue. Therefore, in place of 1 upon ue, we can put as fe plus 1 upon d. Thus, have you noted it? Yes, sir. सर वो डायग्राम वाला डालिए। Diagram. Sir, explain one time, sir. One more time. वीडियो बनाइए। Here for eyepiece, u it is equal to minus ue, v is equal to minus d.
1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. v क्या है? minus 1 upon d minus 1 upon minus uv, it is equal to 1 upon fv minus 1 upon d minus minus plus 1 upon uv is equal to 1 upon fv. 1 upon uv is equal to 1 upon fv plus 1 upon d. It means therefore its magnification m is equal to सब मिटा दिए m is equal to here f o upon minus uv है ना, हाँ सर तो f o तो ये हो जाएगा f o, यहाँ पे लिखेंगे f o और ब्रैकेट के अंदर माइनस एफ को लिख लें और 1 अपॉन यूवी के प्लेस पे लिखेंगे एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, देयरफॉर एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई एंड 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. ये ध्यान रखें, यही मैग्निफिकेशन है. एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ 1 अपॉन एफ ई टेक आउट कॉमन, बाद में भी एफ ई अपॉन डी हो जाएगा ना. हाँ सर सो हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. सो द फाइनल मैग्निफिकेशन, therefore the final magnification, this m is equal to minus एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. ये हमें अब आ जाएगा ऐसे. दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन. When image is far at the least distance of the distinct vision, then this is minus एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 plus एफ ई अपॉन डी. Is it clear to all? Any doubt anyone? Clear? Why the large aperture, large focal length is taken the objective is? Stand up. सर वो पहले ही बताया Stand up. Why it is the large aperture? Stand up. Why the large aperture, large focal length is taken? सर बिकॉज इट द ऑब्जेक्ट मतलब जो था बहुत बड़ा था फिगर था साइज, तो उसको तो देखने के लिए ऐसे do. So that in gather light from all parts of the खड़े हो जाओ, खड़े रहो. So that it can gather light from all parts of the stars and the satellites, and it is taken smaller so that the gathered parts can pass through the gathered light can pass through the small area and the distinct image can be found. आज बैठो, अटेंशन में रहो. You see, this is the magnification. और इसका जो एक स्पेशल केस होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी. देखना अच्छा, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का सेकंड केस है व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का ये इमेज का लिस्ट कहाँ बन रहा था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब वो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी. देखो अच्छा, व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी. ओके सर. Image formed at infinity. You see this? When image is formed at infinity. अगर इंफिनिटी पर इमेज बन रही है, इसको हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं. नॉर्मल एडजस्टमेंट.
normal adjustment. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हम रिलैक्स डाई से इसको देखते हैं। जैसे स्टार्स को हम रिलैक्स डाई से देखते हैं, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता। 25 सेंटीमीटर हमेशा स्ट्रेन डाई से देखते हैं। अगर पढ़ना हो तो स्ट्रेन डाई से देखेंगे ना, स्टार्स देखते हैं तो रिलैक्स डाई से देखते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट देखना, यहाँ पे इमेज पर ऐसे ये लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, इट इज लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ देखना ऐसे। और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पैरेलल बीम ऐसे जाएगी। देख लेना, ये थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। और बहुत थोड़ा सा ही अंतर रहता हो जाता है। और ए डैश बी डैश इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ए कब इन्फिनिटी पे, ए तो इसके फोकस पे बनना क्योंकि ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, लेकिन ये जो है दोनों के फोकस एफ ओ एफ पी कोइंसाइड करेंगे। ध्यान रखना, एफ ओ एंड एफ पी कोइंसाइड। जब ये फोकस पे बनेगा फाइनल इमेज तभी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो अब देखना, इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो हम ऐसे मिलाएंगे, इधर से ऐसे जाएगा, फिर पीछे ऐसे मिलेगा, और फिर इन्फिनिटी। ये भी आई हमारे पास है, आई भी इससे बनता है। कहने का मतलब ये है कि इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ध्यान, एफ ई और एफ एफ ओ एंड एफ पी कोइंसाइड। ये ध्यान रखना, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, लेकिन यहाँ पे एफ ओ एंड एफ ई बोथ कोइंसाइड यहाँ पे कर जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है कि इमेज तो इसके फोकस पे ही बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पीस है, ये हमारा आई पीस है। ये ध्यान रखना, दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा एंड दिस इज बीटा, एंड इमेज इज एट द इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ऐसे बनता है फाइनल इमेज। तो हम इसमें करेंगे क्या, तो अब सिंस द हैव यू नोटेड इट, draw this diagram, now note down। Sir, wait, sir. ये एंगल होगा, देखना अल्फा, इट इज बीटा, देख लेना, नोट कर लो। Since the object at infinity, so its image is formed at its focus. Since final image formed at the infinity, so image should be formed at the focus of the eyepiece. As a result, the
focal point of the objective piece and the eyepiece coincide. If object angle made by the at the objective piece is alpha and the angle made by the image at the image beta at the eye. Here you see, since the heavenly bodies lie at a long distance, so the angle made at the objective piece is same as the eyepiece. तो जो ये एंगल है और ये एंगल हम इक्वल मान के चलते हैं, ये भी अल्फा ही लेते हैं क्योंकि लार्ज डिस्टेंस में हम उसको इक्वलाइज करते हैं. नाउ द मैग्निफिकेशन, नोट डाउन द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन नोट कर लेना. मैग्निफिकेशन इट कैन बी डिफाइंड एज मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड. मैग्नीफाइंग पावर लिखते हो ना, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर से ही मतलब है. ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर भी उसे कहते हैं. तो मैग्निफिकेशन it can be defined that it is the ratio of angle formed by the image and object at the eye. Angle formed by the image And the object at the eye, when both lie at the least distance, when both lie at the infinity, it is the ratio of the angle formed by the image and object. It is the ratio of the angle formed by the image and object at the eye when both exist at infinity. That is, m is equal to beta upon alpha. It is equal to tan beta upon tan alpha. It is also equal to tan beta. You can see tan beta a dash b dash upon eb dash, a dash b dash upon eb dash upon tan alpha. Tan alpha is equal to a dash b dash upon ob dash, a dash b dash upon ob dash. A dash b dash cancelled out, so ob dash upon eb dash. Ob dash is what? Ob dash is fo and eb dash is minus ft. Clear करना. It is equal to minus fo upon ft. Care. माइनस एफ ओ अपॉन ये लिखना माइनस एफ टी. ये कितना है? एफ ओ. तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई. यही है मैग्निफिकेशन. फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया. रिफ्रैक्टिंग. इसके बाद एक छोटा सा है, कभी कभी तो वैसे पूछता तो नहीं, 2 नंबर में कभी कोई पूछ लेता है. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसग्रेनियन कहते हैं. कैसग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. सर गैलीलियो गैलीली कौन सा बनाया था? हाँ, गैलीलियो गैलीली कौन सा टेलीस्कोप बनाया? ये तो यही बनाया. कंपाउंड. हाँ, कंपाउंड ही बनाया. 1600 ईस्वी में. हाँ, 1600 ईस्वी उस जमाने में बना लिया था. उतना इफेक्टिव नहीं था, तो खैर बहुत इफेक्टिव आ गया, लेकिन फिर भी जुपिटर को देख लिया. कुछ तो देखा. नाउ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ध्यान में रखना. रिफ्रैक्टिंग कहेगा तो हम लेंस बनाएंगे, और रिफ्लेक्टिंग कहता है तो मिरर वाला बनाएंगे. देखना, रिफ्लेक्टिंग हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें मिरर लगता है.
reflecting telescope, reflecting telescope. देखो होता क्या है इसमें, what happens here, सर वो खराब हो गया। पैराबोलाइडल फॉर्म में हम रखते हैं। पैरेलल बीम ऐसे देखना है, इसके फोकस के जस्ट पहले एक कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं। ये देख लेना, ये हमारे पास ये ऐसे है, देख लेना ऐसे ऐसे हमारे पास पैराबोलाइडल मिरर है, रिफ्लेक्टिव मिरर। यहाँ से पैरेलल बीम देखो इन्फिनिटी से ऐसे आएगा, यहाँ से पैरेलल बीम ऐसे इन्फिनिटी से आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे जाती है और ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे जाकर ये मिलती है। यहाँ पे जब मिलती है तो इमेज यहाँ पे आई बनती है और यहाँ पे हम आई पीस लगाते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाते हैं हम भी, और तो ये हमारा आई पीस, ये आई पीस, ठीक। आइए देख लेना, ये इन्फिनिटी से रेज आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे गई, ये आई बनता आई। और यहाँ पे ऐसे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखना इट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इसके फोकस से पहले ही हम लगा देते हैं ताकि कन्वर्ज ना हो, ये जो है तो ऐसे देखना। ये हमारा कैसग्रेनियन टेलीस्कोप कहते हैं, कैसग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यदि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। और ध्यान में रखना this telescope is used for the brighter image. This telescope is used for the brighter image of the heavenly bodies, It consists a paraboloidal concave mirror, and a convex mirror before the focus of the paraboloidal mirror, before the focus of a paraboloidal mirror, parallel beam comes from heavenly bodies form the image at the eyepiece, तो पूछा जाता है द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज सुपीरियर देन द, तो हम लिख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सर ये आईपीस है वो क्या है, लेंस है कि फोर है? ये लेंस है, यहाँ से हम देखते हैं कॉन्वेक्स ना, हाँ लेंस, यहाँ पे आईपीस है और ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पे है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। इसमें बेनिफिट्स of the reflecting telescope,
benefits of the reflecting telescope. A reflecting telescope, note down, reflecting telescope gives the brighter image than the refracting telescope because the no light is absorbed by the mirrors, because the no light is absorbed by the mirrors. A reflecting telescope is free from chromatic aberration. Chromatic aberration. Chromatic, C-H-R-O-M-A-T-I-C. Chromatic, A-B-E-R-R-A-T-I-O-N, aberration. Chromatic aberration. Chromatic aberration का मतलब होता है व्हाइट कलर का कलर्ड आइटम बन जाना। उसमें क्या होता है, कुछ प्रिज्मेटिक बिहेवियर होता है लेंस में, तो कभी कभी कलर्ड इमेज बन जाती है, ये उससे मुक्त होता है। इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। अब पता लगा ऑब्जेक्ट व्हाइट है, इमेज उसका कलर्ड बन रही है, तो हम रियल फिगर नहीं पाते, ट्रू पिक्चर नहीं देख पाते, तो लिखेंगे इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी लिख लेना, free from spherical aberration. It is free from spherical aberration. It is paraboloidal. Spherical aberration का मतलब इतना बड़ा स्फीयर हो कि पूरी लाइट को कन्वर्ज न कर पाए, तो इसमें हम पैराबोलाइडल लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व, पैराबोलाइडल में हम स्फेरिकल एब्रेशन दूर कर लेंगे। इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन। थर्ड, फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन। एंड फोर्थ लिखना, इट इज इजी टू हैंडल। इट इज इजी टू हैंडल बिकॉज इट इज वेरी लाइट। इट इज लाइटर दैन द रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। ये हल्का होता है, लेंस भारी होता है और मिरर हल्का होता है। इट इज इजी टू हैंडल बिकॉज इट इज लाइटर दैन द रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। और पांचवा लिख लेना, इट इज चीप। इट इज चीप, या कह सकते हैं इट इज इकोनॉमिकल। हाँ, इट इज इकोनॉमिकल लिख लेना, सस्ता भी हो जाता है क्योंकि मिरर सस्ता होता है। ठीक है, बाद में पूछा गया क्या? हाँ, बाद में